جو کچھ ہم جی یہ درمیان میں وہ آگے ہے. چلیے ٹھیک ہے, ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اچھا سہیل بھائی آواز آ رہی ہے نا صحیح؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. اب آپ دوبارہ سے یہ سبق نمبر 3 کا خلاصہ کی بات کر لیں. دوبارہ سے کریں. جی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک طرح کا ریویژن لیسن ہے. تمام لیسن جو ہم نے پڑھے ہیں ان کا ریویژن بھی ہوگا انشاءاللہ, اور جو ایکسرسائزز خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں تو ان کے حل کرنے کا جو طریقہ ہے خاص طور سے جو آج میں بتلاؤں گا مشق نمبر 3 کا, تو وہ بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ تدریس ہے نا اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا یہ فائدے مند نہیں ہے جب تک کہ پچھلے اسباق کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا ہو اور ان کی پریکٹس نہ کر لی ہو تو آگے بڑھنے سے کچا پن رہ جائے. تو لہٰذا آج ہم سبق نمبر 4 نہیں پڑھیں گے, بلکہ آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں کہ یہ ریویژن, آج کا جو سیشن ہے یہ پچھلے تمام اسباق کا ایک ریویژن ہے اور مشقوں کے حل میں ہم آپ کی رہنمائی کریں. یہ آج کا یعنی پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں کہ سبق نمبر 3 جو انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس کا خلاصہ ٹری ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. اگرچہ گزشتہ مرتبہ ہم نے اس کا ذکر کر دیا تھا, یعنی اس کو سمجھا دیا تھا, لیکن ایک ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے اور ابھی جو ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے, اس لیے مناسب ہے کہ ہم ایک مرتبہ اور اس کے اوپر نظر ڈالیں. قسم کا تیسرا پہلو عدد ہم نے پڑھا تھا, حالت اور جنس کے بعد تیسرا پہلو عدد. تو اس میں آپ نے جیسا کہ پڑھا کہ 3 ہمارے پاس اس کے اندر 3 اس کے پہلو یا 3 اس کی شاخیں, واحد, تثنیہ, یعنی خلاصہ یہ کہ عربی میں جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے, 3 یا اس سے زائد. 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور واحد تو ہے ہی اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے نا. دیگر زبانوں میں واحد اور جمع ہوتی ہے, سنگولر اینڈ پلورل, لیکن عربی میں ایسا نہیں. تو لہذا آپ کو عدد میں ان 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اب ہم نے اس میں جو نوٹیشنس آپ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی, جس کو ہم نے ایک موڈ یا ایک پیٹرن قرار دیا تھا, تو پہلے ان کو لکھا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیچے ان کی مثالیں لکھی گئی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے نا وہ فارمولوں کی شکل میں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا, اور میں یہی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے آغاز کرتے ہیں. واحد جو ہے یہ یا تو گروپ 1 سے ہوگا یا گروپ 2 سے ہوگا. گروپ 3 جو ہے نا وہ تو غیر مبدل ہے, اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تغیر ہے. تغیر صرف 2 میں. گروپ 1 اس کی آواز کیا ہے, ان. ٹھیک ہے. نیچے مثال بھی آ جائے گی, آپ صرف اس وقت آواز پر غور کریں اور یا اس پیٹرن پر جو ہم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو واحد میں یا تو ان کی شکل ہوگی یا پھر آ. جیسے مساجد یا عائشۃ, یعنی یہ واحد ہے نا, یا ابراہیم, اس میں تنوین نہیں. جبکہ ان کی جو مثال دی گئی تھی محمدن. ٹھیک ہے. تو گویا کہ واحد میں آپ کو یہ 2 پیٹرنز یاد کرنے ہیں واحد کے تحت, یا تو وہ ان کے پیٹرن پر ہوگا یا آ. ٹھیک ہے. آگے چلیں. یہ تو ہو گیا واحد کا. اب تسنیہ پہ آ جائیں کہ اگر کسی بھی واحد اسم سے ہم تسنیہ بنانا چاہیں, یعنی ڈویل بنانا چاہیں, چاہے مؤنث ہو یا مذکر, سب کا ایک ہی قاعدہ ہے. اس میں فارمولہ بھی دیکھیے ایک لکھا ہے, آنے, عین. ٹھیک ہے. یہ نون کے نیچے زیر لگنی رہ گئی. آپ لوگ اپنے پاس جیسے آنے میں نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے, آنے, تصنیہ کے نیچے دیکھیے, آنے
आई ने, यहाँ भी नून के नीचे जेर होनी चाहिए थी, जो शायद लगने से रह गई। तो आप दोनों जगह नसब और जर दोनों के नीचे नून के नीचे जेर लगा। अब ये बन गया पैटर्न आने, आई ने, आई। बस इस आवाज़ को याद रखिए, ठीक है ना। आगे चलें, अभी सिर्फ हम पैटर्न आपको बता रहे हैं, फिर नीचे मिसालों को जाए। अब जब जमा में हम पहुंचते हैं तो वहाँ हमें दो किस्में नजर आती हैं, ठीक है ना, सालिम और मुकस्सर। सालिम के बारे में बताया गया था कि ये ऐसी जमा है जिसमें वाहिद की शक्ल बरकरार रहती है, उसमें सिर्फ आगे कुछ इजाफा किया है, ठीक है। उसके लिए पैटर्न है ऊना, ईना, ईन। ये जो डैश है उस पर इसकी जगह हम वो वाहिद इस्म रखेंगे और उसके आखिरी हर्फ पर हम पेश लगाएंगे और फिर ये बढ़ा देंगे जो पैटर्न में ऊन। जैसे किताबुन है ना, तो किताबूना, अगर से किताबूना तो जमा सालिम नहीं आती, मुस्लिमूना जैसे। अब हम नीचे मिसाल में देखेंगे तो सामने समझ में आए। इस वक्त सिर्फ पैटर्न पे गौर करें। जमा सालिम में पैटर्न जो है ना वो एक ही है और ये मुजक्कर के लिए, ठीक है, ये बात खास है। तस्नीय में ये तमीज़ ज़रूरी नहीं है, तस्नीय में तो एक ही पैटर्न है, चाहे मुअन्नस हो या मुज़क्कर। लेकिन जमा में, जमा सालिम में मुजक्कर के लिए अलग पैटर्न है ऊना, ईना, ई, और मुअन्नस के लिए अलग पैटर्न है, वो नीचे लिखा हुआ है आतुन, आतिन, आतिन। इसी लाइन में देखिए, जमा सालिम की लाइन में नीचे पैटर्न दिया हुआ है आतुन, आतिन, आतिन, ठीक है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, हम मिसाल में भी देखते हैं। तो ये हो गए जमा सालिम के दो पैटर्न। तस्निया का सिर्फ एक था, वाहिद में भी दो थे, और सालिम में, जमा सालिम में मुजक्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग, ठीक है। अब जब हम अप्लाई करेंगे ना तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा, अभी सिर्फ हम पैटर्न को वाज़ेह करें। अब आ जाइए मुकस्सर की तरफ। जमा मुकस्सर जो होती है ब्रोकन प्लूरल, उसमें वाहिद जो है ना वो अपनी हालत पर बरकरार नहीं रहती, उसमें टूट फूट हो जाती है, हरूफ जो है आगे पीछे या हस्फ कर दिए जाते हैं। तो वो या तो ग्रुप टू से होगा, जमा मुकस्सर अगर किसी चीज़ की बनेगी या तो ग्रुप टू से होगी या ग्रुप वन से, ठीक है। यदि दोनों इसके अंदर दोनों एहतमाल आते हैं, जैसा कि मिसाल में नीचे वाज़ेह किया जाता है। तो अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पैटर्न आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं। तो इनको आपको जहन नशीन रखना, ठीक है, तो फिर आप आगे आसानी के साथ बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। मैंने ये किया है कि इन्हीं के नीचे मिसालें भी दी हैं जो बिल्कुल इन्हीं पैटर्न के मुताबिक। देखिए मुज़क्कर पे देखिए, मुस्लिमुन वाहिद है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिम, ये हम वाहिद के नीचे आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर पैटर्न दिया हुआ उन, अन, इन, तो उसी लिहाज से मिसाल लाई गई है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब इसी को आगे बढ़ाइए, यदि हॉरिजॉन्टल चलेंगे आप, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, ये तो वाहिद की शक्ल है, फाइली, मफूली और इज़ा। आगे चलिए, तस्नीय में ये बन जाएगा मुस्लिमान, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन, क्योंकि ऊपर पैटर्न आप देख रहे हैं क्या है, आने, हैने, हैने। तो जब ये मुस्लिमून का लफ्ज इधर आएगा तो उसमें जो दो पेश है ना आखिर में, वो हटाकर आप एक पेश है, तो ये बन जाएगा मुस्लिमाने, और उसमें आने को आपको बढ़ाना ही है पैटर्न की वजह से, तो साचा है। तो मुस्लिमाने, ये उसको मुसलमान ना पढ़िएगा, तो मुसलमान का जो लफ्ज है ना वो अलग ही तरकीब पे है। ये है मुस्लिमाने, दो मुसलमान मर्द हालत फाइल में, फिर मुस्लिमैन और मुस्लिम, हालत मफूली और हालत ज़र, ठीक है। तो हमने मुस्लिमों से आगाज़ किया था और हम यहाँ पहुँच गए मुस्लिमान, मुस्लिमैन, मुस्लिम, ये उसका हमने तस्नीया और तीनों शक्लें भी दी। और आगे चलिए, हॉरिजॉन्टल ही में आप बढ़ते जाए। अब जमा सालिम के नीचे आ जाइए ऊना, ईना, ईना, ठीक है। तो इसमें होगा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिम, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि वाहिद की शक्ल
बरकरार रहती है, टूटती फूटती है। तो मुस्लिम का लफ्ज़ इसमें आप देख सकते हैं, मीम सीन लाम मीम मौजूद है, आगे ऊना बढ़ा है, ऊना ईना ईना। मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान, हालत फाइली, मुस्लिमीना और मुस्लिम, हालत मफूली और हालत हिज़्र। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हालत के बदलने से माने नहीं बदलते, पोजीशन या केस बदलता है, ठीक है ना, हर जगह इस बात मलहूज है। तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिम, ये बन गया है, ये पूरी हॉरिज़ॉन्टल लाइन हमारी खत्म। अब नीचे है एक मिसाल ऐसी भी है जो ग्रुप 2 से है, क्योंकि मैंने बताया था कि वाहिद या तो ग्रुप 1 में हो लाई करेगा या ग्रुप 2 में। तो एक मिसाल उसकी भी, अकबर अकबर अकबरा अकबर। अब आप ये जहन में सवाल ना लाइएगा कि यहाँ पे अकबरू पे 2 पेश क्यों नहीं, ये अकबरून क्यों नहीं, ठीक है ना। ये बाय डिज़ाइन कह लीजिए, बाय डेफिनेशन ये सेकंड ग्रुप से चूँकि ताल्लुक़ रखता है, इस पे 2 पेश नहीं आ सकते। ये सेकंड पैटर्न के मुताबिक आ अकबर अकबरा अकबरा, उसी तर्ज पर ये चेंज है, ठीक है। अलबत्ता जब तस्लीम में पहुँचेंगे तो वहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं, वहाँ तो उसी पैटर्न में आप ढाल देंगे, अकबराने अकबरैने अकबर, ये हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, ठीक है ना। अकबर 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 वाहिद और अकबराने अकबरैने अकबरैने, बस 3 शक्लें हो गई। अब देखिए आगे सालिम इसकी नहीं बनती, ये है ख़ास बात। यानी ज़रूरी नहीं है कि जमा सालिम उसकी एग्जिस्ट करती हो सकता है वो जमा मुकस्सर रखता हो, वाहिद हो, तो यहाँ ऐसा ही केस है। इसलिए यहाँ पर देखिए कि सालिम के नीचे डैश लगा दीजिए, यानी इसकी जमा सालिम अकबरूना अकबरीना अकबरीना एग्जिस्ट नहीं करती, काबिल इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इसकी जगह जमा मुकस्सर इसकी आती है अकाबिरू अकाबिरू अकाबिरा अकाबिर, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं अकाबिर, बड़े लोग, तो अकाबिरू अकाबिरा अकाबिर। तो ये जमा मुकस्सर है, लेकिन ये ग्रुप 2 से ताल्लुक़ है। अब नीचे एक और मिसाल ले लीजिए, काफिरुन काफिरन, ये मैंने जानबूझ के मिसाल ऐसी दी है जिसकी दोनों जमे एग्जिस्ट करती है। जमा आप देखेंगे इसकी जमा सालिम भी बनेगी, जमा मुकस्सर भी बनेगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये मिसाल दी। लेकिन वाहिद तो बिल्कुल सिंपल है, काफिरुन काफिरन काफिर काफिरुन। आपको पता है कि जब 2 ज़बर आते हैं तो उसके साथ एक अलिफ लगाया जाता है, तो काफिरन में वाहिद के नीचे देखिए काफिरुन काफिरन काफिर, ठीक है। एक काफिर मर्द हालत फाइली, और काफिरन हालत मफूल में, और काफिर एक काफिर मर्द हालत इजाफे, रिलेटिव पोजीशन। अच्छा, जब हम इसको तस्नीये में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल देखिए, तो कोई कोई ख़ास चेंज नहीं, मतलब वो उसी तर्ज पर चेंज होगा, काफिराने काफिरैने काफिरैन। यानी ये तस्निया वाला जो फ़ायदा है ना, ये बिल्कुल पक्का है, और मुअन्नस हो या मुज़क्कर सबको इसी पैटर्न पर ढाल कर आप तस्निया बना सकते हैं। तो 3 शक्लें हो गई जनाब, काफिराने काफिरैने काफिर। तो 2 काफिर मर्द हालत फ़ाइली काफिर काफिरैने, 2 काफिर मर्द हालत मफ़ऊल, और उसके आगे फिर हालत। अब देखिए काफिर, कुरान हकीम में कुल या अय्युहल काफिरून, देखिए काफिरून का लफ्ज़ आगे जमा सालिम इसकी एग्जिस्ट करती है, और वो उसी उसी पैटर्न पर ऊना ईना हीना, काफिरूना काफिरीना काफिर। बहुत सारे काफिर मर्द हालत फ़ाइली में काफिरून, और फिर हालत मफूली और हालत। और आगे देखिए कि इसकी जमा मुकस्सर भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वाहिद इस्म की जो है ना, वो जमा सालिम भी बन रही है और मुकस्सर भी, कम है ऐसे अल्फाज, लेकिन बहरहाल हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए कुफ़ार जो है ना, ये भी कुरान हकीम में आ गया, युअजिबुल कुफ़ार नबा, तो कुफ़ार जो है वो जमा सालिम है, सॉरी जमा मुकस्सर है, इसलिए वो जमा मुकस्सर के तौर में।
अच्छा, अब ये जमा मुकस्सर कभी तो ग्रुप 2 में होती है, कभी ग्रुप 1 में होती है। जैसे ऊपर आपने देखा कि अकबरू की जो जमा मुकस्सर आई थी वो अकाबिरु अकाबिरा अकाबिरा यानी ग्रुप 2 से लाई है। लेकिन यहाँ देखिए कि अ, ये जो है ग्रुप 1 से ताल्लुक है इसका, कुफ्फारुन कुफ्फारन कुफ्फारी। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाके आप, ये मेरा कैमरा खुला हुआ है, इसको नहीं, तारिक अहमद भाई हैं या कौन साहब है ये जिनकी आ रही है तस्वीर, और एक खलील भाई हैं। अच्छा, जिन साहब का भी कैमरा खुला हुआ है ना उसको जरा बंद करो। अच्छा, हो गया। ठीक है भाई, ये बड़ी यूनिक मिसाल है काफिरुन की, कि इसमें सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जमा सालिम भी और जमा मुकस्सर। और इसकी जमा मुकस्सर जो है वो ग्रुप 1 से ताल्लुक करती है, कुफ्फारुन कुफ्फारन कुफ्फार। ठीक है जनाब, तो ये जनाब हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो हम जितनी बात की ना वो मुज़क्कर के हवाले से। ठीक है, अब आइए ज़रा मुअन्नस की तरफ। ये चार्ट अगर आपने समझ लिया ना, यूँ समझिए कि आपने 1/3 ग्रामर पर उबूर हासिल करे, इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। मुअन्नस में देखिए, वाहिद की तरफ आ जाइए, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत हालत फाइल, मुस्लिमातन मुस्लिम। मैं आपको बता चुका हूँ कि गोलता अगर होती है तो उस पर जब दो ज़बर आते हैं आखिर में तो अलिफ मुस्लिम तन मुस्लिम, ये तो वही बात है, वाहिद की तीन शब्द। अब आ जाइए तस्नीया, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ठीक है, तरीका मैंने क्या बताया था कि आखिर की जो गोलता है ना उसको हटा दो, उसको हटा के और बस फिर पैटर्न में डाल दो। तो गोलते आपने हटाई और पैटर्न में डाला तो बन गया मुस्लिमतान, मुस्लिमा है ना, मुस्लिमतान ने बना। अच्छा नहीं, मगर देखें अगर हमने गोलता हटाई है तो फिर से वो मुस्लिमान, तो गोलता नहीं हटाएंगे, उसमें से तनवीन हटाएंगे। ठीक है ना, ये फायदा होता है पैटर्न का कि ता चूंकि इसमें तस्वीर में ता नजर आ रही है, गोलता जो है उसमें से हमने सिर्फ तनवीन हटाई है और जबर हटाया है और फिर पैटर्न में डाला। तो मुस्लिमातान बन गया, मुस्लिमातान, और फिर आगे बन गया मुस्लिमतैन, और वही रिपीट हो गया मुस्लिमतैन। माने क्या है, दो मुसलमान खवातीन हालत फाइल, मुस्लिमतान। ते जो है ना, इसके ता जो है वो अलामत तानीस है, वही बता रही है कि ये मोहम्मद। मुस्लिमतैन दो मुसलमान औरतें हालत के मफूली में, और मुस्लिमतैन दो मुसलमान औरतें हालत में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तस्नीया का एक ही तरीका है, एक ही फर्क, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। जमा सालिम की तरफ आई है, जमा सालिम में इसका फार्मूला अलग है मुज़क्कर के मुकाबले। वहाँ तो ऊना ईना ईना था जमा सालिम का तरीका मुज़क्कर में। मुअन्नस में ये है आतुन आतिन आतिन। हाँ, यहाँ पर गोल ता गया, वो मैं असल में पहले गलत बता गया। तस्वीर में तो गोल ता पे सिर्फ आप जबर लगाकर पैटर्न में डालेंगे, तो यहाँ पर जमा सालिम में ये बात है कि गोल ता को आप हसब करें, मुस्लिमातुन में जो गोल ता थी उसको हटा के अब आप इस पैटर्न में डालें तो बन जाएगा मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन। अगर हम वो गोल ता बरकरार रखते हैं ना तो फिर ये दो ता हो जाते थे, मुस्लिमतातुन इस तरीके से कहीं बनता, वो सही नहीं है। इसलिए जब आप सालिम में जब आप आएंगे आतिन आतिन आतिन, तो आप गोल ता को हस्फ कर दें और पैटर्न में, तो ये बन गया मुस्लिमात मुस्लिमात मुस्लिम। बहुत सारी मुसलमान खवातीन हालत फ़ाइज़ी, फिर आगे हालत मफूली और हालत इजाफ़ी। इसमें ये बात है कि हालत मफूली और इजाफ़ी यकसां एक ही शक्ल, जैसे सालिम के अंदर भी आप देखें मुस्लिमीना मुस्लिमीन जो है वो
एक जैसा, रिपीटेड, ठीक है ना, यानी हालत मफूली और हालत इजाफी एक ही है, एक ही शक्ल, जैसा कि मुस्लिमातिन मुस्लिम। गोया कि खुलासा ये कि वाहिद में जो गोल ते थी, गोल ता थी, उसकी जगह यहाँ लंबी ता, ताए मबसूता इसको कहते हैं, बड़ी ता, छोटी छोटी ता हट गई जो मोनस में थी, बल्कि बड़ी ता लगाकर हमने उसको जमा सालिम बनाया, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिम। इस फायदे पर सैकड़ों अल्फाज आपको कुरान हकीम में मिलेंगे, मुमिनातुन मुमिनातिन, कानितातुन कानितातिन, ये सब जो है ये इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो आखिरी मिसाल हम ले रहे हैं कि जिसमें मुअन्नस होने के बावजूद वो इस फार्मूले पर जमा सालिम नहीं बनती, कि जमा सालिम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आइए उस मिसाल को भी देख लें, तो फिर ये देखिए वो मिसाल है मसअलतुन, एक मसला, मसअलतुन एक मसला, और ता लगी हुई है तो हम उसको मुअन्नस शुमार करें, ठीक है, अगर कोई जानदार चीज़ नहीं है मसअलतुन, लेकिन जैसे कि मैं अर्ज करता कि गोल ता अगर आ जाती है तो वो मुअन्नस बिल यकीन अलामती मुअन्नस बन जाती है। मुस्लिमतुन, सॉरी, मसअलतुन मसअलतन मसअला, एक मसला हालत फ़ाइली में, एक मसला हालत मफ़ऊल में, और एक मसला हालत, ठीक है। दोस्तों हम जब इबारत में इस्तेमाल करेंगे ना तो वहाँ पर मज़ीद वाज़ेह है, यहाँ तो आपसे चुनती जो बदलती हुई शक्ल है उसको देखें। अच्छा, अब इसको हम देख, उसमें तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं, तो मसअलतानी मसअलतैन, देखिए यहाँ पर गोल का ड्रॉप नहीं की गई है, बल्कि उस पर से तनवीन से पढ़ा है, तो मसअलतुन से मसअलतान, दो मसाइल, दो मसले हालत फ़ाइली में, मसअलतैन दो मसले हालत मफ़ऊली में, और दो मसले हालत, ठीक है जनाब। मसअलतान मसअलतैन मसअला, तस्निया बन गया। आगे चलो, अब जब हम सालिम में पहुँचे हैं, जमा सालिम के नीचे आप देखें यहाँ डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब इसकी जमा सालिम एग्जिस्ट नहीं करती, अगर जमा सालिम एग्जिस्ट करती होती तो वो हालिम थी जाती, वो नहीं एग्जिस्ट, बल्कि इसकी जमा मुकस्सर आती है, और वो क्या है, मसाइल, मसले की जमा मसाइल, तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो भाई क्या मसला है, क्या मसाइल है, मसला और मसाइल, तो ये मसाइल जो है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसलिए इसको एक पेश है, दो पेश नहीं है, ठीक है। मसाइल मसाइला मसा, ठीक है, माने जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे मसाइल हालत फ़ाइल, बहुत सारे मसाइल हालत मफ़ऊल, ठीक है, तो माने नहीं तब्दील होते, बल्कि पोजीशन चेंज है। ये जनाब जो चार्ट है ना, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, इसको ज़रा जहन में भी बिठाएं, और इसके ऊपर जो मश्क की गई है ना, उस मश्क के हल करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो मैं आपको अभी बतलाऊँगा। तो ज़रा सोहेल भाई मश्क नंबर 3 पर आ जाए, पीछे वापस, ये मश्क नंबर, अब तक की जितनी मश्क़ें आपने की है ना, तो उनमें ये सबसे अहम मश्क है, इसलिए कि इसको हल करने के लिए बाकायदा एक चार्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बतला रहा हूँ। वर्ष नंबर 3 में क्या कहा गया, झैल में चंद वाहिद अस्मा दर्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि कॉलम में आते हैं। पहले तो इनमें से हर एक की तीनों हालतें लिखी है, रफ़ा नसब जर फ़ाइल मफ़ऊल तहरीर की, नंबर 1। फिर वाहिद से तस्निया बनाकर उसकी तीनों हालतें लिखी है, ठीक है, यानी दो काम करना है आपको, वाहिद से तस्निया भी बनाना और फिर उसकी तीन शक्लें भी लिखनी है, तीन हालत, और आखिर में इसी वाहिद से जमा सालिम बनाकर उसकी तीनों हालतें कहनी। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि जमा सालिम एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो जिन अस्मा की जमा सालिम नहीं बनती उनकी जमा मुकस्सर सामने लिख दी, आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बता दिया गया है कि भाई इसकी जमा सालिम भी बनेगी
यानी वो जमा सालिम की जो फार्मूला है ना, ऊना ईना ईना या आतुन आतिन आतिन, वो नहीं लगेंगे, लेकिन की सालिम नहीं बनती है। तो मुकस्सर बनती है, वो मुकस्सर आपको बताओ। तो ये आपको काम करना है। वाहिद की 3 शक्लें, तस्नीया बनाकर 3 शक्लें और जमा बनाकर 3 शक्लें। अब सवाल ये है कि इसको करेंगे कैसे, मतलब इसका अंदाज क्या होगा। तो वो मैंने नीचे लिखा, जरा सा ऊपर कीजिएगा, सोहेल भाई थोड़ा सा ऊपर कीजिए। नीचे नीचे हल दिया हुआ है इसका, सॉरी मैंने ऊपर गलत कह दिया। हाँ, नीचे नीचे कीजिए और ये है। बस बस, ये हल करने का अ, तरीका नहीं, वही चलेगा। ये तो ये तो सबका हल आ गया ना, यहाँ ना है वही, जहाँ मैंने मर्च नंबर 3 लिखा है ना, मर्च नंबर 3 पे जाए वापस। ये बस यहाँ रोक, यहाँ रोक, और थोड़ा सा नीचे, वो जो करने का तरीका, यहाँ रोक, यहाँ रोक। आपको जो कहा गया है कि आपको एक लफ्ज दिया जा रहा है और उससे आपको 9 शक्लें बनानी, ठीक है ना। तो अब हल करने का तरीका ये है, जो मैंने आपको एक चार्ट की शक्ल में दिखाया है कि आप ऐसे एक चार्ट बनाएं, ठीक है। उसमें अदद को आप वर्टिकल दिखाएंगे, वाहिद तस्नीय जमा, और हालत को आप हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे, रफा नसब जर। देख रहे हैं ना, अदद अदद नीचे की तरफ है और हालत हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक लफ्ज हम ले लेते हैं, देखिए एक लफ्ज से 9 शक्लें कैसे बनी। जन्नतुन हमने लफ्ज ले लिया, वाहिद जन्नतुन, ये भी साइड में लिखा होगी, थोड़ा सा मिट गया, जन्नतुन। अब आइए, सबसे पहला काम क्या करना था, 3 शक्लें तो आपको वाहिद की बनानी, जन्नतुन जन्नतन जन्नत, ये आप पहले कर भी चुके होंगे प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये सब कंबाइंड आ रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग पिछली मशक़ें नहीं कर सके हैं, वो भी अगर इस पर कंसंट्रेट कर लेंगे ना, तो उनके लिए ये काफ़ी होता है। वाहिद जो है वो 3 शक्लें, जन्नतुन जन्नतन जन्नत। तो 2 ज़बर के बाद अलिफ आता है बिलउम, लेकिन बोल ते होने की वजह से यहाँ पर अलिफ नहीं आया। जन्नतुन जन्नतन जन्नत, माने इसके हैं बाग, ठीक है, बाग। तो एक बाग हालत फ़ाइली में, हालत रफ़ा में, और एक बाग हालत मफ़ूली में, और एक बाग हालत, ये माने हैं। अब आइए नीचे तस्निया, क्योंकि आपने अदद जो है ना वो ऐसे वर्टिकल रो में लिखा है, वाहिद इसका बनाइए। आपको पैटर्न याद होना चाहिए, आने ऐने ऐन, जन्नताने जन्नतैने जन्नतैन, ठीक है ना, यही बनना चाहिए ना। जन्नतुन का आखिर से तनवीर हटाएंगे आप बोलते से, और आने बढ़ा देंगे, तो जन्नताने जन्नतैने जन्नत। 2 बाग हालत फ़ाइली में, 2 बाग हालत मफ़ूली में, 2 बाग हालत तस्निया बन गया जनाब, 6 शक्लें हो गई। अब आइए नीचे, अब आपको जमा बनानी है। तो जमा इसकी जो है वो सालिम ही आती, क्योंकि अगर मुकस्सर आई होती तो हम वहीं ऊपर मेंशन कर देते, ठीक है। तो अब आप इसकी जमा सालिम बना दीजिए, आतुन आतिन आतिन, ये इसका फार्मूला है, जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया गया। तो जन्नातुन जन्नातिन जन्नातिन, तो 3 शक्लें बन गई। जमा, ये जमा सालिम है, याद रखिएगा। जमा सालिम होती है जो फार्मूले से, पैटर्न से बनाई जाए, और मुकस्सर जो होती है वो पैटर्न से नहीं बनती है। वो तो उसका अपना ही एक स्टाइल है, तो वो या तो ग्रुप बन होगी या ग्रुप बन। तो हो जाके एक इस ऊपर जितनी चीजें दी ना आपको, ऊपर दोनों कॉलमों के अंदर, उन सब की आपको 9 शक्लें बनानी है, वाहिद की 3, तस्निया की 3, जमा की 3, ठीक है। अब इधर आ जाइए दूसरी तरफ सामने, हमने एक ऐसी मिसाल दी है जिसमें जमा सालिम नहीं मुकस्सर आती, ये लिखा हुआ भी है, देखिए मस्जिदुल, आगे ब्रैकेट में जमा मसाजिदु, ग्रुप, नजर आ रहा है,
یہ جو ووکیبلری میں دیا ہے مسجد، یہ ہم نے یہاں سے دیا۔ اس کا بھی جناب ایسے ہی چارٹ بنائیے۔ اس چارٹ کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر دیجیے کہ آپ کو ورٹیکلی جو ہے نا آپ کو عدد لکھنا ہے، واحد، تثنیہ، جمع، اور ہارزنٹل میں لکھنا ہے رفع، نصب، جر، فاعلی، مفعولی، اضافہ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ میں نے کر دیا۔ رفع، نصب، جر یہ عربی کی اصطلاح ہے، اچھا ہے کہ آپ ان کو بھی استعمال کریں۔ تو 3 ادھر ہو گئے جناب ورٹیکل میں، 3 ہو گئے ہارزنٹل میں، تو 9 شکلیں اس کی خود بخود بن جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ واحد ہے مسجد، ایک مسجد حالت فاعل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نصب حالت نصب یعنی حالت مفعولی میں لے جائیں گے، 2 زبر لگائیں گے اور الف کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسجد، مسجدن، اور آگے مسجدن، ٹھیک ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، قرآن حکیم میں ہے وہ مسجد جو بنسبت المنافقین کی بنائی ہوئی مسجد ذرا وہاں یہ لفظ ہے۔ تو مسجد، مسجدن، مسجد، یہ ہو گیا واحد کی 3 شکل۔ اب آ جائیے تسنیہ، 2 مسجدیں، مسجدان، مسجدین، مسجد، 2 مسجدیں حالت فاعلی میں اور پھر مفعولی اور اضافہ۔ اسد بھائی 5 منٹ رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، انشاءاللہ ہو جائے گا آج آدھے میں سے۔ اچھا، اور اب آئیے جمع کی طرف آ جائیے۔ جمع اس کی جو ہے نا سالم نہیں بنے، اگرچہ یہ لفظ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں تو مسجد ہم مؤنث بولتے ہیں، مسجد مسجد بڑی ہے، لیکن عربی میں مسجد مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں اور نہ یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس کی جمع اصولاً تو بننی چاہیے تھی مسجدونا، مسجدینا، مسجدین، اونا، اینا، اینا، جو مذکر کا وزن، لیکن نہیں، اس کی جمع سالم ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ جمع مفسر ایگزسٹ کرتی ہے، وہی استعمال مساجد، مساجد گروپ 2 سے، مساجد، مساجدہ، مساجد، بہت ساری مسجدیں حالت فاعلی میں، بہت ساری مسجدیں حالت مفعولی میں، اور ٹھیک ہے جناب۔ چلیے اب سہیل بھائی وقت کیونکہ کم ہے تو مشق نمبر 4 پہ آ جائیں گے۔ جو 3 تھی نا مشق، اس کے ہم نے حل بھی دے دیے ہیں آگے، اس کو ذرا اسکرول کریں آپ، اور ہاں یہ مشق دی ہے، یہ آپ پہلے نہ دیکھیے گا، پہلے کر لیجیے گا پھر ملا لیجیے گا، پھر اس سے کمپیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور آگے کیجیے گا، اور آگے، ہاں مشق نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اچھا طارق بھائی کے لیے خصوصی خوشخبری ہے، انہیں یہ بڑی شدت سے انتظار ہے کہ قرآن حکیم سے بھی جو ہے نا مثالیں دی جائیں، تو جناب بسم اللہ، سبق نمبر 4 میں ساری مثالیں قرآن حکیم سے۔ اچھا یہ اوپر جو چارٹ ہے نا، یہ میں نے پھر دوبارہ خلاصہ نکالا، تو میں اس لیے اب اس چارٹ کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سب آپ ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تازہ پر، اس کو آپ خود ہی دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے نا، جتنی شکلیں، وہ سارے فارمولے میں نے ایک جگہ جمع کر دیے، تو وہ آپ کے لیے وہ مسئلہ۔ اب البتہ یہ جو مشق نمبر 4 ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، ذرا مشق نمبر 4 لائیے گا۔ ہاں، مندرجہ ذیل آیات قرآنی میں سے خط کشیدہ انڈر لائن اسما کی حالت بتلائیے اور بقیہ حالتیں بھی تحریر کی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے احادن ہے تو آپ اس کی حالت بتائیں کہ یہ کون سی حالت، اور بقیہ جو 2 حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں نا ٹوٹل، تو بقیہ 2 حالتیں آپ کو خود لکھنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ لیجیے گا، میں نے سولوشن کا جو انداز بتایا ہے کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے، 3 کالم بنانے ہیں، اور اس کے اندر آپ حالت رفیع، نصبی، جری لکھ کے، اور اس کے اندر جہاں یہ فٹ ہو رہا ہے وہاں اس کو فٹ کر دیں، اور بقیہ حالتیں آپ خود بنائیں، ٹھیک ہے جناب۔ چلیے یہ مشق نمبر 4 ہو گئی قرآن حکیم سے۔ آگے چلیے گا، مشق نمبر 5 پہ آ جائیے۔ مشق نمبر 5، مندرجہ ذیل اسما میں سے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کیجیے، نیز جو اسم مؤنث ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ مؤنث کی 3 قسموں میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے، 2 کالم بنائیں گے، ایک مذکر کا، ایک مؤنث کا۔ مؤنث کے نیچے پھر جو ہے سماعی، جو مؤنث کی قسمیں ہیں نا، وہ 3 قسمیں آپ لکھیے، وہ جو ہم نے آپ کو بتایا، تو اس کا سولوشن بھی میں نے چونکہ آگے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ جیسے پہلا لفظ لے لیں ہم ما ان، یہ مذکر ہے، اس میں مؤنث کی علامت نہیں، تو آپ اس کو مذکر کے کالم میں لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تو آگے آپ کو کچھ نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی مؤنث ہے تو جیسے شمسن ہے، شمسن ٹھیک ہے، اور بتائیں گے کہ یہ کون سی ہے، حقیقی ہے، علامتی ہے. تو آپ جمع کے نیچے مؤنث کے نیچے 3 کالم بنائیں گے، حقیقی، علامتی، سماعی، اور پھر یہ جہاں لائی کر رہا ہے اس کالم میں اس کو ڈال. شمسن جو ہے مؤنث سماعی ہے، وہاں ڈال دیجیے گا. اس طریقے سے مذکر کو مذکر کالم میں اور مؤنث کو مؤنث کالم میں، مؤنث کے نیچے آپ کو 3 سب کالم اور بنانے پڑیں گے، حقیقی، علامتی اور سماعی. اس میں آپ ان کو فٹ کرتے جائیں، یہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ اپنے بارے میں جان سکیں گے کہ آپ نے ان کو مؤنث ہونے کے الفاظ سے صحیح پہچانا کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو اس کا سلوشن دیکھ لیں. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یہ 5 مشقیں اگلی مرتبہ آپ ضرور ضرور حل کر کے اور ڈسکس بھی کر لیجیے گا. اگر کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم انشاءاللہ سبق نمبر 4 کا اگلی مرتبہ سے آپ. ٹھیک ہے جناب، وقت میں پورا ہو گیا. جی سہیل بھائی. ہاں جزاک اللہ. جی آپ کا وقت ختم ہونے والا. ہاں وقت پورا ہو گیا تو